نہایت ادب سے منتمس خطیب علیہ مفسر تاریخ اسلام جناب عزت باب سید سمر حیدر زیادی صاحب سے کہ عورت اور روز ممبر اور اپنے بیانات سے مومنین کو مستفید کریں. کسی تو سلامتی کے لیے بابا میں بلند صلوات اللہ. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لا نول ولا من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له إلى ذلك. اللهم ظل الحافظ التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران وعلى العالمين صلوات محمد. اللہ نے گرام قدر برادران ملت شیعان سرکار حضرت اقرار غلامان کرتے انتحار ساکنان بزم معرفت مسلسل قرآن اور آل عمران کے عنوان سے ایک روحانی سفر جاری و ساری ہے جس کی آج یہ تیسری تقریر اب حضرات میں بہترین
ذوق سماج کی نظر ہونے جا رہی ہے۔ کل تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آل عمران سے مراد کون ہے اور یہ کون عمران ہے کہ جس کی آل اللہ کے انتخاب کا نقطۂ آخر ہے، یعنی جہاں پر اللہ کے انتخاب کی حد ختم ہو جاتی ہے ان ہستیوں کو آل عمران کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آل اتنی عظیم ہے تو جس کی آل ہے اس کا مرتبہ کیا ہو۔ قرآن مجید کا جو آخری حصہ ہے جس میں مختصر سورے آپ کو ملیں گے، زیادہ تر سوروں میں پروردگار عالم نے قسم کھا کے بات کا آغاز کیا۔ اللہ کو اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ اتنے بلند ہیں کہ خالق کائنات قسمیں کھا رہا ہے۔ بہت سے سورے آپ کو اس انداز کے اور اس نوعیت کے قرآن میں 30ویں پارے میں آخر کے حصے میں مل جائیں گے، جیسے سورہ والشمس آغاز ہو رہا ہے کہ والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم اور اس کے روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو سورج کے بعد بلا فصل نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں میرے سامنے، یہاں سب کو معلوم ہے کہ یہاں شمس سے مراد کیا ہے اور قمر سے مراد کیا ہے۔ شمس سے مراد شمس رسالت سرکار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قمر سے مراد امیر المومنین۔ آج کی جو تقریر ہے آپ نے گزشتہ دنوں میں مجھ حبیب کی جو حوصلہ افزائی اور پذیرائی کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا ایک اہم گفتگو ہے اور اسے آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اسی طرح سورہ واللیل ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ سج جاتی ہے، سمر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک سورہ اور ہے، وہ سورہ ہے سورہ والضحیٰ۔ اس سورہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے اور رزق کی تنگی ہے تو وہ اس سورہ کو
بسم اللہ کے ساتھ 72 بار پہلے درود بھیج دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ایک بار ہی ہو، ایسے 72 بار کریں، اور پھر اس سورے کی 7 بار تلاوت کریں، اور پھر آل محمد کو درود بھیج کے، اور اگر اللہ سے دعا مانگے تو اسے غیب سے رزق عطا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی آل محمد کے فضائل کی برکت ہے کہ اس کے غیب میں یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو مومنین کے فائدے کے لیے۔ عجیب انداز ہے جو قدرت نے اختیار کیا ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ درکار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتی ہوئی دوپہر کی قسم اور رات کی قسم جب وہ دن کے اجالے پر محیط ہو جاتی ہے۔ خطاب کس سے؟ خطاب اللہ کر رہا اپنے مقاصد اور اپنے مطالب کے ترجمان اپنے حبیب سے۔ آگے کا جملہ دیکھیے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب دن کی قسم رات کی قسم، آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ بہت توجہ رکھیے، آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہاں رب سے مراد خالی پروردگار ہے تو میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ کس کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ شہر کے حیات سے قریب ہے۔ نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شہر کے حیات سے قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی ڈاکٹر تمہاری نبض کو ہاتھ رکھے، پلس چیک کرے گا، بہت کرے گا تو سینے پر آلہ لگا دے گا، مگر ہم تمہاری شہر کے حیات سے قریب ہیں۔ ہم نہیں چاہیں گے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہم نہیں چاہیں گے تو تمہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ موت و حیات تو ہمارا اختیار ہے، لہذا ٹھیک ہے طبیب کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر بھروسہ ہم پر رکھو، اعتماد ہم پر رکھو، یقین ہم پر رکھو۔ تو وہ اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کا خیال رکھتا، وہ خود لامکان ہے مگر ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا۔ یہ توحید بھی محسوس کریں کہ وہ خود نہیں کھاتا مگر زمین کا سینہ چیر کے رزق کو نکالتا ہے تاکہ ہمارے بندے بھوکے نہ رہیں۔ تو وہ تو سب کا خیال رکھتا ہے، تو پھر خالی اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے یہ کہنا کہ دن کی قسم رات کی قسم آپ کے رب نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو یہاں رب سے مراد فقط اللہ نہیں ہے بلکہ کوئی ہے زمین پر جو رب حبیبی کا مذہب بن کے رسالت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کے رب نے یعنی آپ کے مربی نے، آپ کے پالنے والے نے کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تاریخ گواہ ہے، دوپہر
تھے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہیں پر حقائق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اغیار کی زبان پر بھی سچ کے سوتے پھوٹتے ہیں. اغیار کی زبان سے ایک اہل سنت عالم دین میں نہیں سمجھتا کہ اس سے خوبصورت کوئی جملہ ہو سکتا. اس اہل سنت عالم دین نے یہ کہا سرکار ابو طالب کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد اس اہل سنت عالم دین نے یہ لکھا کہ میں تو ابو طالب کی جافشانیوں اور قربانیوں کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب سے اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا تبھی سے اللہ نے ابو طالب کو ان کی کفالت کے لیے تشریف فرمائے. یہ آواز مجھے کل سے لگ رہا ہے کچھ ایکو ہو رہی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے گا جہاں آواز تھوڑی بھی آپ کو ایسا لگے تو ہاں وہ مجھے بتائیے گا کیونکہ کل بھی ایسا لگا کہ آواز کچھ ایکو ہو رہی ہے. تو اگر ایکو ہو تو ذرا سا بھی تو بتائیے گا کیونکہ مضمون بہت گہرائی کے لیے سمجھ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ذرا سا بھی آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع. یہ خطیب کی ذمہ داری ہے. اگر 100 آدمی فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 1 گھنٹے کی تقریر ہے تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے, یہ 100 گھنٹے. اب یہ ممبر کو آنے والے کا کام ہے کہ وہ ان 100 گھنٹوں کو ضائع کر دے یا یوٹیلائز کر دے. میں چاہتا ہوں کہ مضمون کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہے اور وقت کے اندر بات تمام بھی ہو جائے. میں نے کہا آج کی تقریر ذرا ایک الگ نوعیت کی ہے. کیا کہا سائر سنت عالم دین نے کہ جب سے مصطفیٰ کو اپنی رسالت کے لیے چنا تب سے ابو طالب کو ان کی کفالت کے لیے چن لیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ رسالت کا قرآن ہے اور ابو طالب اس کا جزدان ہے. جس فانوس سے حفاظت میں روشن ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب کہاں سے یہ کفالت کا سلسلہ شروع ہوا, کہاں سے یہ پرورش کا سلسلہ شروع ہوا, کہاں سے یہ معاملہ ہوا دنیا میں. تو دیکھیے یہ وہ نبی ہے کہ جب دنیا میں آیا تو دنیا میں نبی کے آنے سے پہلے سرکار عبداللہ دنیا سے پردہ کر چکے. یعنی ایسا نبی ہے کہ دنیا میں جب آیا ہے تو سر پر باپ کا سایہ نہیں. 6 سال کی عمر ہوئی سرکار رسالت معاف کی تو مدینے اور مکے کے درمیان مقام ابوا پر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو. یعنی اب ماں کا بھی سایہ نہیں. یعنی ایسا نبی کہ نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ, حتیٰ کہ خود بھی جسم کا سایہ نہیں. بہت اچھے سے سن رہے ہیں مگر یہ آگے والوں کے ساتھ رہے سننے میں ذرا سا تو پیچھے نہ نظر آیا. ماشاءاللہ آپ سب متوجہ اور پہلے دن سے متوجہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا آپ حضرات آگے اور تشریف لیں تاکہ جو لوگ اندر آنا چاہتے ہیں اندر کھانے میں انہیں کوئی زحمت کی دشواری نہیں ہو. تھوڑا تھوڑا اور آگے آئے.
جسم کا سایہ نہیں تو کون اس کا سایہ بن گیا؟ کس نے اپنے کرم کا سایہ اس کے اوپر ڈال دیا؟ کس نے اس کی ذمہ داری اٹھا دی؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار رسالت مآب 8 سال کے تھے تو تب تک دادا کی کفالت میں تھے، یعنی سرکار عبدالمطلب کی کفالت میں تھے۔ اب میں مسلمانوں کی تاریخ کی قدیم ترین کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام۔ دیکھیے معاملہ یہی ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہیں اور کتاب ہماری ہو تو مخالف کہتا ہے کتاب آپ کی ہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو ٹھیک ہے بھائی، کتاب آپ کی ہوگی، بات ہماری ہوگی، تاریخ آپ کی ہوگی، مورخ ہمارا ہوگا، مورخ آپ کا ہوگا، تاریخ ہماری ہوگی، تاریخ ہماری ہوگی، مؤلف آپ کا ہوگا، تصنیف ہماری ہوگی، مفکر آپ کا ہوگا، فکر ہماری ہوگی، اگر مفتی آپ کا ہوگا، فتویٰ ہمارا ہوگا۔ تو تاریخ مسلمانوں کی قدیم تاریخ ہے، سیرت ابن ہشام۔ ایک کتاب اور سن، طبقات ابن سعد، یہ 2 کتابیں اور یہ مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب ہے۔ لیکن اب منظر دیکھیں، جتنا سننے کا ہے اتنا ہی دیکھنے کا، جتنا سننے کا۔ اور اگر میں نے اس عزا خانے میں ذکر مولا کے صدقے میں تصویر نہ کھینچ دی تو میں نے نجف کے وادی سے بھیگی کیا مانگی؟ جو درے علی سے بھیگ ملی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ منبر ہے غدیر کا، یہاں سے سنایا نہیں جاتا ہے، دکھایا نہیں۔ آپ کے بہترین لوگ کا سماج کو میرا سلام، جس خوبصورتی سے آپ سنتے ہیں۔ کل کی تقریر آن لائن گئی تو بہت سے رسپانس آئے کہ کیا بہترین مومنین، کیا سماعتیں ہیں، کیا بیدار سماعتیں۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ سنیے عزیزوں، تو حضرت عبدالمطلب کا آخری وقت اور حضرت عبدالمطلب بستر پہ ہے، آخری وقت ہے۔ سارے بیٹے، کیونکہ حضرت عبداللہ تو پہلے ہی ان کی رحلت ہو چکی ہے، باقی اور جو بیٹے سب باپ کے آخری وقت میں جمع ہیں، اور سرکار رسالت مآب اپنے دادا کے پہلو میں ایک مرتبہ حضرت، ارے کیا تاریخ ہے قسم خدا، ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو دیکھا اور پھر سرکار رسالت مآب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علم غیب اور کس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مگر کسی کو اپنی موت کا ایسا ہی ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی اس قیمتی ترین امانت کو تم میں سے کسی امین کے سپرد کر کے جاؤ، تم میں سے کسی امین کے سپرد کر کے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ بڑا بات تھا، مسجد قضا کو بیٹھنے والا خطیب کے قریب حضرت عبدالمطلب کا دربار لگتا، یہ کائنات کا پہلا بادشاہ کہ جس کا دربار عادل حقیقی کے گھر میں لگتا تھا۔ کیا کہنا، اگر میں خالی حضرت عبدالمطلب کو گفتگو کروں تو 2-3 مجلسوں جو حیات القلوب وغیرہ میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے لکھا، مگر وہ ساری باتیں میں اسکپ کر رہا ہوں۔
तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि उन्वान है कुरान वाले में। सुनिए, बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूं और आप बहुत अच्छे से ना, मुझे लगा मेहनत करने की जरूरत है, और आप भी माशाल्लाह जिक्र मौला में चेहरे सबके गुलाब हैं। देखा तो कहा कि तुम में से किसी अमीन को सुपुर्द करके चले। अब जाहिर है इतना बड़ा बाप है, बज़तुल बलद है, काबिल हकीकी के घर में दरबार लगता है, काजी उज़्ज़ात है, सरदार अरब है, तो हर बेटे ने आगे बढ़ के कहना शुरू किया। तारीफ कहती कि हजरत ज़ुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ा। देखिए साइकोलॉजी स्टडी की है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। बाप से ज्यादा बेटे को कोई नहीं जानता। बेटा कितना ही पारसा क्यों ना हो जाए, कितने ही ज्यादा मुत्तकी क्यों ना हो जाए, बाप उसके बारे में जितना जानता है कोई और नहीं जानता। सोचिए, नब्बास थे, नब्बाज़े फितरत थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत ज़ुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने कहा बाबा बेहतर और मुनासिब समझे तो मेरे भतीजे को मेरे हवाले कर दे, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। जानते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं, बेटा ज़ुबैर तुम इसका ख्याल रख सकते हो, मगर मसला ये है कि तुम लावलद हो, तुम्हारे खुद कोई तुम लावलद हो, तुम्हारे खुद कोई औलाद नहीं है। जिसके खुद कोई औलाद नहीं होती वो दूसरे की औलाद के दर्द को हकीकत से नहीं समझ सकता। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे भाई। देखिए असा सामने में जगह पूर्ण हो चुकी है, जो मोमिन बाहर बैठे वहां से नारा आ रहा। यही तो अली के बाबा के फजाइल का कमाल है। जिसका खुद कोई औलाद नहीं होती वो दूसरे की औलाद के दर्द को उस हकीकत से नहीं समझ सकता। बात सही थी। हजरत ज़ुबैर खामोश, हजरत हमजा के उनका बाबा मुनासिब समझे तो मेरे हवाले करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा तुम चाहते भी इसको बहुत हो, तुम इसके करीब भी बहुत हो, मगर मसला ये है तुम अक्सर बाहर रहते हो। जब तुम बाहर रहोगे तो इसको काफिरों से कौन बचाएगा, मुश्रिकों से कौन बचाएगा। हमजा भी खामोश होगा कि भाई बात तो ठीक है। हजरत हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, उन्होंने कहा बाबा मेरे हवाले कर दीजिए। उनको भी ये जवाब दिया कि ठीक है तुम भी किफायत कर सकते हो, मगर जैसे मैं चाहता हूँ उस मियार पर तुम नहीं हो। हजरत हारिस खामोश हो गए। एक मर्तबा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, उन्होंने कहा बाबा अगर मुनासिब समझे तो मेरे हवाले कर दे। तो एक मर्तबा मौला हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा तुम कसीरुल अयाल हो, तुम्हारे खुद औलाद ज्यादा, जिसके खुद औलाद ज्यादा हो वो दूसरे की औलाद को इतना वक्त नहीं दे सकता। यहाँ पर तशरीफ फरमा, मेरी तरफ देखते रहिएगा। एक मरतबा हर बेटा आगे बढ़ता रहा, अब्दुल मुत्तलिब कुछ कहते रहे, जिसके कदम आगे बढ़ रहे थे उनके कदम पीछे हटने लगे। तारीख कहती है सबके कदम पीछे हट रहे थे, एक था जिसके कदम आगे बढ़ रहे थे। यानी कोई था इस मजमे में, अब वो कौन था मैं क्या बताऊं। इतना सुन लीजिए कि रियासत की ज़बान में रईस अरब था, सखावत की ज़बान में सफीर अरब था, नसब की ज़बान में आली नसब था, हसब की ज़बान में आली हसब था, हसब की ज़बान में आली हसब था, हुस्न की ज़बान में बैतुल बलद था, हुस्न की ज़बान में बैतुल बलद था, रियासत की ज़बान में रईस अरब था, हर लिहाज से गालिब था। कमियत में अभी
को भी था। हजरत अबू तालिब आगे बोले, कहा बाबा मेरे हवाले कर दीजिए। अब तक हर बेटे को अब्दुल मुत्तलिब खुद जवाब दे रहे थे, मगर जब हजरत अबू तालिब ने पेशकश की तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अबू तालिब से कुछ नहीं कहा, मुखातिब हो गए रसूलुल्लाह की तरफ। मगर मुखातिब हुए रसूलुल्लाह की तरफ, बेटे आपका क्या ख्याल है? यानी अब्दुल मुत्तलिब अपनी मर्जी पर रिसालत की मोहर लगवाना चाहते हैं। जैसे ही ये कहा, खुदा की पता नहीं आप कहाँ हो, जो देखेगा मेरी तरफ इस वक्त उसे जन्नत का नजारा दिखाई दे। खुदा बता रहा ये अली के बाबा के जिक्र का मौजूदा देखिएगा मेरी तरफ, अजीब मंजर। एक मर्तबा सरकार रिसालत बाप ने जैसे ही ये सुना, 8 साल की उम्र, अभी तो दावा रिसालत भी नहीं, अभी दुनिया को क्या पता, ये राज की बात है। अल्लाह के राजदारों को मालूम है, मशीयत के राजदारों को मालूम है, अल्लाह को महरम मशीयत को मालूम है, महरम मशीयत को मालूम है। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं, अबू तालिब जानते हैं, और क्या कौन जानता है इनकी हकीकत। एक वक्त सरकार रिसालत बाप ने फौरन दाता के पहलू से उठे और उठने के बाद ना इधर देखा न उधर देखा, क्योंकि इस वक्त रिसालत का क़िबला अबू तालिब है। दिया है आपको, रिसालत का क़िबला अबू तालिब है। रसूल खुदा ने सीधे अबू तालिब की तरफ रुख किया। उधर अबू तालिब बड़ी देर से खड़े हुए थे इंतजार में। रसूल खुदा का कद छोटा था, अबू तालिब का कद बड़ा था। भतीजा दौड़ते हुए चचा की तरफ आ रहा था। नासिर हकीकी चचा ने छुपना शुरू किया। तशहुद के आलम में तशहुद के आलम में हजरत अबू तालिब आ गए, अपनी दोनों बाहों को फैला दिया, इधर फैला के इंतजार कर रहे हैं रिसालत का। रसूल खुदा आके सीधे अबू तालिब के सीने से लग गए। अबू तालिब ने अपनी फैली हुई बाहों को समेट लिया। बहुत बड़ी बात है। रिसालत का पूरा वजूद अबू तालिब के सीने से आके लगा। अबू तालिब ने फैली हुई बाहों को समेट लिया, यानी अपनी बाहों के हिसाब में रसूल खुदा को ले लिया। नहीं तुम्हारे जहन के करीब नहीं हो सका। जुमला सुनिएगा, अबू तालिब ने अपनी बाहों के हिसाब में सरकार रिसालत बाप को ले लिया। ये जो अबू तालिब के बाहों के हिसाब में आया है, ये कोई अल्लाह की मामूली हुज्जत है। ये अल्लाह की वो हुज्जत है कि आदम से लेकर ईसा तक के नबी अगर इसकी रिसालत का कलमा न पढ़े तो रिसालत से मालूम हो जाए। ये वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा है लौला कलमा खलक़तु लफना, अगर आप न होते तो हम कायनात को खल्क़ नहीं करते। लेकिन वो है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं बनाया हमने आपको रसूल मगर ये कि आलमीन के लिए आपको हमने रहमत बना दिया। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आप रहमतुल लिल आलमीन है। और आयत कहाँ पर है? अबू तालिब की बाहों के हिसाब में जुमला आपके हवाले है, जिसकी दोनों बाहों के हिसाब में आलमीन की रहमत से बचाए।
सुनता रहूंगा। रसूल मेरी पनाह में रहेगा, मेरे साए में रहेगा। देखिए, लिबास का ताल्लुक जिस्म से आरजी तौर पर होता है। शेरवानी है ना, ये मेरे जिस्म पर दायमी तौर पर नहीं, आरजी तौर पर। यानी जब तक मजलिस पढ़ रहा हूं, आपके दरमियान हूं, शेरवानी रहाइश गाह पे जाऊंगा, असद भाई के घर शेरवानी उतारूंगा, टांग दूंगा। यानी इसका ताल्लुक दायमी नहीं, आरजी। आरजी ये अल्लाह की वो हुज्जत है जो अल्लाह आपके समीने कल्ब में उतारे। ये अल्लाह की वो हुज्जत है जो अबू तालिब की आगोश में आई है कि अगर ये वक्ती तौर पर अपनी दोष पर सब्ज या काली चादर डाल दे तो अल्लाह की नजर उस पर पड़ जाती है। दोष पर जो रेखा पड़ी है, काली या सब्ज, इसका ताल्लुक आरजी है, हमेशा पैगंबर के दोष में नहीं है, कभी कभी है, मगर कुदरत की निगाह उस पर भी पड़ गई। ऐसा हबीब है ये कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। यानी अगर आरजी तौर पर भी ये कोई कपड़ा अपने जिस्म पर डाल लेता है तो अल्लाह उसके जरिए से कुरान में खिताब करता है। तो अबू तालिब ने को जिंदगी भर के लिए मोहम्मद को आप सलामत रहे, मौला आपको शान और आबाद रखे। अबू तालिब ने तो जिंदगी भर सरकार रसालत पाक को अपनी पनाह में ले लिया, अपनी आवाज में ले लिया। तो परवरदिगार कुछ में अबू तालिब कभी कहेगा कि इतनी सूरत तो हमें आगे क्यों नहीं पढ़ते? अलम यजिदका यतीमन फआला, तो अबू तालिब की होगी, वजह हमारी होगी। मामूली बात नहीं है ये, गौर कीजिएगा। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक के अमल को अपना अमल नहीं कहा है। अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक के अमल को भी अपना अमल नहीं कहा। न जाने निगाहे कुदरत में अबू तालिब क्या है कि अबू तालिब पना दे, अल्लाह करा हमने पना दी, हमने पना दी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसको जिस्मानियात से पाक और मुबर्रा है। अल्लाह कहना ये चाहता है कि अगर मैं जिस्म रख के मक्के पे आ जाता तो हबीब को वैसे ही पालता जैसे अबू तालिब ने पाला। बात नहीं है। इसके पीछे उलमा ने खुद आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-गदीर ने 6 और 7 जिल्द लिखी। अल-गदीर खाली सरकार अबू तालिब की इन्हीं फजीलतों पर। देखो वक्त नहीं, मैं पहले आपसे कह रहा हूँ, मैंने वक्त की गुर्बत मेरे मद्देनजर है। कभी फिर मौका मिला तो मैं तफसील से गुफ्तगू करूंगा। फ़आवा अल्लाहु अकबर। अच्छा, मुझे अभी तक कोई खामोश नहीं दिखाई दे रहा, मगर शायद अगर कोई किसी वजह से खामोश रह गया हो तो उसके लिए ये जुमला समर है दे रहा। और मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये अमल कहाँ हो रहा था? मक्के में। किसके घर में हो रहा था? सरकार अब्दुल मुत्तलिब के घर में। जिम्मेदारी ये कौन रहा था?
सरकार अबू तालिब किसकी ले रहे थे? अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत थी। तो मुसलमान भूल जाए तो मुहैया शान फरामोश, मुसलमान भूले तो भूले इस बात को, अल्लाह कहां से भूलेगा? अल्लाह तो ये मंजर देख रहा है ना। अल्लाह ने कहा हल जमाओ आखिरी अवधि तक, हल जमाओ सामने इल्ला एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ और नहीं हो सकता। अभी तालिब तेरा ये एहसान मुझ अल्लाह पे रहा, तूने आज मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अबू तालिब के एहसान का कसीदा पढ़ रहा है। जुमले हमारे करे तो अंदर से तो हाथ लाया जी। ये अबू तालिब के एहसान का कसीदा पढ़ रहा है कहां? आए हो इस वाले सवाल हो जाए हम वाले अल्लाह मुहम्मद नबी अल्लाह मुहम्मद, क्या प्यारी बात उन्होंने कही कसम से। तो देखिए मुझे जिसकी बात अच्छी लगती मैं उसी के नाम से पूछता हूँ। ये बयानदारी मिंबर को होनी चाहिए मिंबर में। तो सुनिए बड़ी अच्छी बात बोली। लेकिन मौलाए कायनात जिस महीने में खाने काबा में आए वो महीना रजब था। रजब मुसलमानों के फिरकों में घूम जाइए तो किसी से पूछे भैया बताओ रजब के मानी क्या? नहीं बता पाए, सिवाय हमारे कोई बता ही नहीं सकता। एक शख्स ममलकत सदाकत के सादिक इमाम के पास आया। जो तुमने महसूस कर रहा है मेरी तरफ से ना है। हम लखनऊ से आए थे खतीब है भाई, बीच में बहुत जुमला बोल देते हैं, महसूस करते रहिए ना। ममलकत सदाकत के सादिक इमाम के पास आके मौला फरजंदे रसूल ये बता दीजिए रजब के मानी क्या है?
मौला ने कहा रजब जन्नत में एक नहर है जिससे अंबिया और मुरसलीन वुजू करते हैं। रजब का महीना नहर से पूरा, क्यों ना ये इस महीने के मानी नहर के हूं, क्योंकि इसी महीने में जमीन पर काबे के शिकार से इमामत की वो नहर जलाई हुई है। अच्छा, तो रजब के मानी तो जन्नत में एक नहर, मगर अल्लामा मौसम नकवी अल्लाह मुकाम जश्न कर रहे थे और उसमें दरमियान ये बात आ गई बीच में, तो उन्होंने कहा रजब अरबी कैलेंडर में एक महीना भी है, अरबी कैलेंडर में एक महीना है। देखिए शायर का काम यही होता है कि वो लफ्जों से फायदा उठा देता है, एक लफ्ज शेर बन जाता है, ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है। एक लफ्ज यहाँ माशाल्लाह शोराए कराम बैठे हुए हैं और मैं खुद भी हल्का फुल्का शायर, एक लफ्ज कभी कभी तो एक लफ्ज भी कभी कभी शेर बन जाता है। और आखिरी बात है, सुनिए क्या बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं ये नस्र में शायरी की उन्होंने कमाल की, मैं समझता हूँ इल्हाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं रजब से मुराद महीना अजीब मंजिल थी कि तेरा रजब का नामुल फील, अजीब मंजिल थी। अल्लाह कह रहा था मेरा रजब है, अल्लाह कह रहा था मेरा रजब है, मोहम्मद कह रहे थे मेरा रजब है। जैसे ही अबू तालिब का बेटा काबे में आया, दोनों ने कहा तेरा अबू तालिब के एहसान से बचकर चलना और दामन इस्लाम में रहना बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, मेरे अजीज, क्यों ऐसा करते हो? ये एहसान है अबू तालिब है, ईमान है अबू तालिब मौजूद नहीं होना चाहिए, एहसान है अबू तालिब मौजूद होना चाहिए। ईमान क्या होता है? अबू तालिब का ईमान साबित किया जाएगा और उनके सामने जिनके खुद बुजुर्गों के ईमान का कोई ठिकाना नहीं है, न जिनके शजरों का पता, न जिनकी विलादत गाहों का पता। अरे यहूद और नसारा तुम्हारा भेजा खा जाते, ये कहकर कैसे मुसलमानों तुम्हारे पास तो अपना कबीला भी नहीं है। नमाज पढ़ते हो तो हमारा है, हमारा है, ये अबू तालिब का एहसान है। जो अबू तालिब का बेटा काबे में आ गया, अपने पहले के काबिल हुए, फिर काबा हमारा तुम्हारी नमाजों का भरम रखा अबू तालिब के बेटे, तुम्हारी नमाजों का भरम रखा, तुम्हें क़िबला दिया अबू तालिब ने। ये है आले इमरान, ये है आले। आज कोई भी नमाज पढ़ेगा रुख अली की विलादतगाह की तरफ है।
अल्लाह तो हर तरफ है भाई। अंग्रेजी में भी ये इडियम मशहूर है, गॉड इज एवरीवेयर। खुदा हर तरफ, कौन सा सिर्फ उससे खाली। मगर अल्लाह चाहता ये है कि जो जगह अबू तालिब के बेटे की यादगार है, जब तक उसकी तरफ रुख करके मेरा सजदा नहीं करोगे, ये खानदान है कि आप ज़ियारतों में पहुंचते हैं। अशहदु अन्नका क़द अक़मत अस्सलाह, मैं गवाही देता हूं कि आपने नमाजों को कायम किया। ये अमीरुल मोमिनीन के लिए भी ये फिक्र है और सरकार अब्दुल्लाह के लिए। देखना है मोमिनों को तो करबला आना हो, कहीं पर खुदा की बंदगी को कहां फरामोश किया जाए। इनसे बड़ा आशिक कोई नहीं है अल्लाह। कैसे कैसे सहाबी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन को कोई क्या समझेगा, हुसैन का अंसार व असहाब का उनसे मावेरा। जमीन पर खड़े और निगाहें आसमान की तरफ, और ऐसे में वहां कोई घड़ी नहीं थी। इमाम वक्त से कह रहे हैं अबू समाना, मौला क्या ये अव्वले वक्त सलाते ज़ोहर नहीं है? इमाम भी ये नहीं कह रहे कि हमको बताओगे अव्वले वक्त। इमाम अपने सहाबी की अज़मत को बयान कर रहे हैं कि हाँ खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे। नाम यकीनन हाज़ा अव्वले वक्त सलाते ज़ोहर, ये अव्वले वक्त है ज़ोहर की नमाज। सफ़े आरास्ता कीजिए, इमाम का हुक्म हो गया, सफ़े आरास्ता हो। इधर सफ़े आरास्ता हो, उमर साहब के मजलूम के बेटे ने कहा कि अगर हुसैन ने ये नमाज पढ़ी तो बाबा हम जंग हार, हजारों तीर तरकश में आ गए। जो अल्फाज कहे गए वो मन जबान को नहीं ला सकता। तो ये था कि ज़हरा के लाल हम तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कैसे जानसार है तो सब पाए से बात में लफ्ज़ नहीं। अभी इमाम नियत करके और तकबीर कहने वाले थे कि महसूस किया इमाम हुसैन ने कि उनके कदमों पर किसी के हाथ है। अब जो झुक के देखा तो एक तरफ शहीद है और एक तरफ ज़ोहर है। अली के करीम बेटे ने, कायनात के करीम शहंशाह ने एक मरतबा झुक के शहीद ज़ोहर को उठाया। क्या बात है शहीद ज़ोहर का मौला, एक मसला पूछना चाहते हैं आप, इजाजत है? कहा पूछो। का मौला अगर नीयत हिफाजत की हो तो क्या काबे को पीठ दिखाई जा सकती है? हिफाजत की हो तो क्या काबे को पीठ दिखाई जा सकती है? हुसैन समझिए कहा अगर नीयत हिफाजत की है तो काबे को कुछ दिखाई जा सकती है। एक मरतबा ज़ोहर ने शहीद को देखा, शहीद ने ज़ोहर को देखा, दोनों के होठों पर तबस्सुम की कलियां मुस्कुराने लगी। दोनों ने हाथों को जोड़ के कहा मौला आप हमारे लिए क़िबले विलायत हैं, काबे इमामत हैं, ये आपके जानिसार हैं, इन्हें लेकर आप नमाज पढ़ाएं, हम आज आपके आगे बढ़ के हिफाजत करेंगे। विजय करबला के मैदान में एक ही वक्त में
नमाज बरकत भी हो रही थी, नमाज मबक्कत भी हो रही थी। ये नमाज मबक्कत कौन पढ़ रहा था? शहीद ज़ुहैर पढ़ रहे थे। बहुत के तीरों को रोक रहे थे। मेरा सवाल है, बताओ तुमसे, बहुत के तीरों को रोक रहे थे। एक तीर लगे जख्म लगता, दो तीर लगे जख्म फैल जाता है, तीन तीर लगे जख्म फटने लगता है, चार तीर लगे जिसम टुकड़ों में तब्दील होने की मंजिल में आ जाता है, पांच तीर लगे एक मरतबा जिसमें एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। तीरों पर तीर लग रहे थे, तीरों पर तीर लग रहे थे और शहीदों को है कह रहे थे सहरा के नाम आप नमाज पढ़ाइएगा, एक तीर भी आपको और सहाबा को नहीं लगेगा तो समझ रहे कि नाम जब तक नमाज तमाम नहीं हो जाएगी मलकुल मौत की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे रूह को कब्ज कर ले। अरे मौत प्यास तैयार है, तीरों पर तीर लग रहा है। हुसैन ने जब नमाज पढ़ ली, नमाज तमाम हो गई, फौरन उठे, ज़ुहैर के पास आए, ज़ुहैर का आखिरी वक्त जहाँ ज़ुहैर से कहा है नाना को मेरा सलाम। एक मौका तक तो जुमला में सवाल हो जाए, एक मौका हज़रत सईद के पास पहुंचो। हज़रत सईद का आखिरी वक्त, हज़रत सईद के सर मौला ने अपने जानू पर सर पर शफ़क़त से हाथ फेर रहे हैं, सर पर शफ़क़त से हल्का होकर ऐसी कुर्बानी के बाद भी वफा तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, मौला क्या आप हमसे राजी हो? सईद मैं भी राजी हूँ, मेरा खुदा भी राजी है। सईद सईद कोई बात है? कहा हाँ मौला, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ सईद क्या बात है? कहा मौला ऐसा लग रहा है कोई बुजुर्ग मेरे सिरहाने पड़े और मुझे अपने दावत की हवा दे। कल सईद ने पहचाना, अरे मेरे नाना रसूल खुदा है, उनको मेरा सलाम कहना और कहना ये वक्त वो है अंकरीब मैं भी उनकी बारगाह में आऊंगा। क्या मौला ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग मेरे दाई जानिब खड़े, उनके हाथ में कोई पूजा है। क्या शहीद मेरे बाबा अली है मुर्तजा, शहीद तुम 3 दिन से प्यासे हो, शहीद तुम्हें जाने का फर्ज सैराट करने आए हैं। अल्लाह ने वफा आलम शहीद कहते मौला मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्यों शहीद इतने प्यासे हो पानी पी क्या करिए एक मरतबा शहीद कहते मौला कोई जवान है जो मेरे पायशाने को लगाए। क्या शहीद मेरा बाबा मेरा भैया अपना मुस्तफा आया है, मेरे भैया को मेरा सलाम कहना। एक मरतबा शहीद ने हिस्ट्री ली, एक मरतबा बोला ये शहीद घबराना नहीं, शहीद मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बोला कोई बात नहीं है? क्या फिर क्या बात है नहीं? क्या मौला सामने कोई नमाज पढ़ रही है तो मुझे हाथ उठा दे, दवाएं ले रही है। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा शहीद अपने पैरों को सेक ले, अरे जन्नत से मेरी माँ फातिमा हो रही है। मेरी अम्मा को सलाम कहना, मैं कहूँगा शहजादी वक्त आया है, आज सहाबी के जनाले में आ गई, अरे वक्त असरोगा हुसैन के गले में कल सजदा होगा, मेरी शहजादी वहाँ भी आ जाइएगा। आपका हुसैन करबला में रखेगा ये तन्हा। उम्र दुनिया के लिए कोई दुआ नहीं है। एक दुआ मौलाना हैदर मेरी साहब ने यहाँ भी अशराफ हो चुके, मैं इन लोग में अशराफ हो रहे थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसको तू वेंटिलेटर पर है तो आप हजरात दुआ करें कि पीठा ने करबला के सुनते हो परवरदिगार आलम उन्हें शफाए आजिला अता फरमाए।
ماتم حسین